حاجی غلام رسول خان شلپ کلا۔ آپ آواز آواز دیکھ رہے ہو اور میرا نام دانش علی ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کشمیر کے 2021 کے پدم شری ایوارڈی جناب حاجی غلام رسول خان صاحب ہیں۔ سوزنی پیچ ورک میں ان کا ایک بہت بڑا کشمیر میں کنٹریبیوشن رہا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے کہ کشمیر کے کرافٹ کو بچانے میں ان کا ہر وقت ایک اہم کنٹریبیوشن رہا ہے۔ حاجی غلام رسول خان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آواز آواز کے ساتھ بات چیت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، انعام ہے۔ اس وادی پر اللہ نے ہر زمانے میں اپنا کرم کیا، فضل کیا، جس کے ذریعے سے یہ کشمیر کرافٹ پورے ورلڈ کے بچے کو علم ہے، مانا جاتا ہے۔ کسی ملک سے بھی کوئی ارادہ کرے کشمیر آ جانے کے لیے، کشمیر کے وادی کو دیکھنے کے لیے، واقعی کشمیر کی وادی ایسی ہے دیکھنے کے واجب ہے، تو لیکن من میں سب سے پہلے اس کو کشمیر کرافٹ کا توجہ رہتا ہے۔ بلکہ آپ نے کوئی بھی ریلیشن آپ نے انہیں کہتے ہیں ہمارے بھی کوئی گفٹ لے کر آ جانا، تو اس میں سب سے مانا جانے والا کشمیر کرافٹ میں ایک تو کشمیر کی سوزنی کام ہے، دوسرا یہاں کارپیٹ تھا، یہ مین چیز تھا، جس میں سوزنی تو نام ہے، لیکن سوزنی میں جو ہم دیکھے ہیں آگے اس دور میں کہ یہاں پر ایک کام ہوتا تھا جاماوار کا۔ جاماوار آج بھی بنتے ہیں، لیکن وہ رنم ہے، یعنی نقاشوں نے چھاپا بنا کے رکھا اور شال کو چھپوایا اور پھر کاریگر کام کر دیے ہیں، اس میں کوئی کلا نہیں ہے۔ اس کو ہم نے جو مارکیٹ میں لیتے ہیں بارہ کسٹمر ہمیں یہی بتا رہے ہیں، پر یہی رنڈم شال ہر کسی کے پاس دیکھتے ہیں، اس میں کوئی آپ کی نئے سرے سے تبدیلی نہیں ہے۔ ہمارے جدو نے بھی یہی لے لیا ہے، کچھ لیٹسٹ دکھاؤ۔ نہیں، ایسے میرے زمانے میں نے خود کہا ایسا کیا چیز کہتے ہیں۔ میں اس وقت کلکتہ جایا کرتے تھے 74 میں، پھر ان کے پاس وہ کچھ کسی کے پاس وہ اینٹیک ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اینٹیک کی شکل آج بھی آپ دیکھیں گے اس کو ہاتھ لگانے سے پھٹ جاتا ہے، وہ اتنا ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ وہ بس کسی کے پاس مارواڑی لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اپنا خاندان کا نام رکھنے کے لیے، ہمارے پرسوں سے ہم خاندانی رویس ہے، اس نام کی وجہ سے ان کو رکھے ہیں اینٹیک کے نام سے۔ ٹھیک نہیں تو میوزیم میں ہیں، جو ہمارے دنیا کے بڑے بڑے میوزیم ہیں، لندن میں ایسے بہت بڑا میوزیم ہے، میں گیا ہے وہاں بھی، تو دیکھا وہاں بھی وہی پیچ ورک لگائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز میرے ذہن میں آ گیا، تو اس کے ساتھ میں خیال میں کرتا تھا، لیکن کب اس کا ابتدا کریں گے، اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے اور پیشنس ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے مجھے غیر موصول طریقے سے ایک سفر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ کا فریکچر ہو گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا اب آپ چل نہیں سکتے ہیں، بڑی دقت ہوگا، کیونکہ یہ ٹانگ بند نہیں ہوگی، اسے کھڑا ایسے ایز اٹ از رہے گا، موومنٹ نہیں کرے گا۔ تو پھر حضرت ایسا ہوا کہ میں بیٹھ گیا، میں کہا یار میری تو فیملی ہے، 3 بچے تھے اس وقت، تو ان کے لیے بھی روزگار کا معاملہ کرنا کیسے کروں، اسی فکر میں لگ گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا الہام ڈال دیا ایک خواب کے ذریعے کہ آپ اس چیز کو ڈیولپ کرو۔ اب بیٹھ کر میں نے اس کی ڈیولپمنٹ کی، اس کی ڈیولپمنٹ بہت لمبی کہانی ہے، اتنی تو یہاں اسٹوری بن جائے گی۔ تو ان شارٹ میں پھر میں نے اس چیز کو بنا دیا۔ میں نے ایک شال نہیں 3-4 شال لگتے ہیں، 3-4 شال کو لا کر اپنے ڈیزائن کے ساتھ ٹکڑے کیا جاتا ہے، پیچ ورک الگ الگ پیچ کرنا چاہے، تو پھر ان کو میں نے ایک سامان میں ایک ہی شال میں لایا بنا کر۔ جب وہ میں نے بنا دیا ہے تو پھر اس پر ہم نے ڈیزائن لکھا ہے، ہر پیج جیسے یہ خانہ کعبہ کا دیوار ہے، اس میں یہ دیکھو اس میں بنے ہیں الگ الگ شکلیں، اسی طرح اس کو میں شکل کے ساتھ الگ الگ شکل بنایا، میں دکھاؤں گا یہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو بعد وہ جب چیز بن گیا تو پھر اس زمانے میں نے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ کو دکھا دیا، پھر انہوں نے اس کے بارے میں بہت بڑی کارگزاری سنائی۔ یہ تو ہم لوگ اس کے لیے پریشان تھا، کیونکہ ہمارے پاس سارک ٹیم کا ایک جڑ آیا کہ کشمیر کرافٹ میں یہ جاماور بنتا، اب کیوں نہیں بنتا، ان پر ایک علم تھی۔ لیکن یہ قدرت کا کرم ہے، آج ہی وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں کشمیر، اور آپ بھی آج ہی اس بات کو لے کر آ گئے ہیں، ہمارے پاس جواب طلبی ہو گئی ہے الحمدللہ۔
अब आपसे गुजारिश है आप 5 बजे एम्पोरियम में आ जाएंगे। तो कश्मीर एम्पोरियम में फिर मैं वहाँ गया, वहाँ वो 2 लेडीज़ थे जो चेयरपर्सन थे, तो मैंने उनको वो दिखा दिया। कुल मिलाकर वो भी खुश हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश। वो पहले डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत खुश हुए, उनके पास ऐसा कोई डिटेल था नहीं। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने इसरार किया, नहीं हाजी साहब को वाकई अवार्ड कोई मिला है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं अवार्ड क्या होता है, कैसे मिलता है। फिर उन्होंने उनके साथ बात किया। उसी साल मुझे स्टेट अवार्ड मिला था। पहले स्टेट अवार्ड मिला था, उसके बाद फिर उसी साल 2003 में मुझे फिर नेशनल अवार्ड मिला। तो उसके बाद कुछ वहाँ के अफसरों ने भी इसरार किया, खान साहब आपको एक और अवार्ड मिलेगा, पद्म या ये शिल्प गुरु, उसका गोल्ड मेडल होता है, शिल्प गुरु मिलेगा, आपके क्या राय है? मैं कहा हाँ, अगर ये कोई दूसरा पीस बना कर दे देगा फिर उसको दे देना। अभी तक इसका दूसरा पीस बनाने मतलब वाला, आपको अपने काम पे फख्र है? इतना फख्र नहीं, पता था ना उसकी डिटेल है। तो मैंने कहा अगर कोई 5 साल में देता हूँ, अगर कोई बना कर दे देगा तो ठीक है, अगर नहीं तो मुझे दे देना, हकदार बना। कहा हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया 5 साल के लिए। उन्हें एक स्टेट गवर्नमेंट को भी इतला किया इसका जोड़ा बना दो। 5 साल में कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं बनवा सका। तो 5 साल के बाद फिर मेरा नॉमिनेशन हो गया, तो मुझे शिल्प गुरु मिल गया और वो गोल्ड मेडल के साथ। तो फिर आगे हो गया, उस पर भी उस वक्त बात हो गई, अगर अब भी कोई बनाएगा, मैं कहा 5 साल फिर देता हूँ, अगर 5 साल में कोई बना देंगे। और जब 5 साल में किसी ने नहीं बनाया तो फिर मुझे पद्मश्री दे दिया। अब उसके बाद भी यही बात है, और मिनिस्ट्री से भी पता चला नहीं, आपको आप 5 साल तक अगर गुंजाइश दे देंगे तो फिर कोशिश करेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वादी में पैच वर्क बनता है, लेकिन उसके मुकाबले नहीं, वो तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो चीज़ का माने नहीं है। हाजी साहब ये मुझे बता दीजिए, वो है ना आपके प्रोफेशन में जमावार पैच वर्क और सोजनी पैच वर्क, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जमावार पैच मैंने अर्ज किया ना, एक तो रनम होता है पीस, एक कालीन आम तो देखते हैं ना वो एक। अब देखो इसने जो कालीन बनाया ये सस्पेंस है, यहाँ एक डिजाइन हुआ, एक डिजाइन हुआ, दूसरा कलर, इसको कहते हैं एंटीक पैच वर्क जमावार। ये अलग अलग पेचों का बना हुआ कालीन है, आप यहाँ देख लीजिएगा। एज इट इसी तरह हमने वो पैच वर्क बनाया, अलग अलग पेचों लगा कर, मैं दिखाऊंगा आपको भी। तो इस तरह वो शक्ल जब बन गई है, तो गर्ज ये है, तो वो चीज़ नमूदार हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यही डिमांड है, हमें पद्म भूषण मिलने का उम्मीद है इस साल, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, पद्म भूषण भी मिलेगा। लेकिन इसके बीच में मेरा यही कहना था, मैं बड़े अपने अफसरों को बता दिया था, बुनियादी मसला मेरा ये है कि देखो अवार्ड तो मैं लेता हूँ, लेकिन वादी के लिए क्या, कश्मीर के लिए, हाँ कश्मीर के लिए क्या है, इसने आपको जन्म दिया, जहाँ पे आपने काम किया, असल तो वो चीज़ है। लेकिन इसके बीच में जो हालत हो गई वो इतना बदतरीन हो गया, हालत तो सबको पता है। हम कारखानदार होते थे, हमारे यहाँ तकरीबन 70-80 कारीगर इकट्ठे बैठते थे। मेरे वालिद के शाल इतना बने फोटो थे, सारी पैच वर्क। बनावान छाप छापान पे लिखान डिजाइनस मज गो ये अलग अलग पेवान बनावन ना, इन बनावा डिजाइन है ओड बनोम छाप यप पे फिर ये साइड डबल बनो, ये मजमू सेंटर बनो, पे कून अलग बनोमुत, यप ब्या कून चारों तरफ बनावा शालस पे शक्ल बनान कि ये शक्ल। दुबई हंदिस सफरस पे सोजे मोदी जी, हाँ गए मनोज सिन्हा आए तौर। ये हमारे इनकलाब अचीवमेंट है जो हमदर्द वालों का है, तो उन्होंने मुझे ये अपनी तरफ से अचीवमेंट दिया था दिल्ली में कि आपको पद्म अवार्ड मिला, उस पर उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। आपको कुछ चालें दिखाता हूँ। अके रंग कपुर
यह अकि रंग कपुर यह अकि रंग कपुर यपर सफेद अंदन हावान यानी यथ तल वाट दित यह वाट सत कलर पत गई अत मज यमिक पे इथे कन यह वाट सत बंद पत गई यम सत पत इन वाट यथ बिल्कुल ना बिल्कुल सह सवाल वाट यह सोरे वन टाल यह सोरे पीस जुड़ित यपर कि यह ब्या कलर ये लगे यपर ब्या कलर यह कीमत के एतबार अगर वनकस वो तो तकरीबन वनकस रोपये लच जोरा लगान अत कामी अगर या कपड़े के एतबार बनावनस तकरीबन लच 2 लाख रुपये लगा सान अत तो पत खस कम कारीगर सं पत तमे एतबार पत कस्टमर हेवान 4-5 लाख रुपये दिक्कत तमन गसान कहें आसानी सान मगर ये ती बनत आन यम डुप्लिकेट वनकस गसान तथ मुश्किल 55 सासन सह शाल कर सेम इथे कई लेकिन स्टोरी यह कहें तथ मज सो कह स्टोरी ना पैच वर्क सह रंग सत बना प्रिंट छाप कर सह छाप सत बना ये फर्क रनम कस कि आम बना यह वनकस आम रनिंग बनान लेकिन ये मज पन बनावान ये कोशिश कर हमेशा यह गस क्वालिटी बन यह कस वनकस आम क्वालिटी बनान क्या तथ मज टेब तन लूज यल यम कलर कॉम्बिनेशन कत उनवानस पे कलर कॉम्बिनेशन बन यह सोरे मुमकिन गसान क्या तालीम कुन जाए आसान लिखित कह तव किन कारखानस मज गसान यकडल बनानस मज सहूलियत ये हा बह तुम ये वन गसन क्वालिटी कारखानस मज बनान क्वालिटी सह गो कि यह शाल हा बह तुम यह सठा कम कारीगर वन रोदमत गिने चुने कारीगर यमि काम हंद रोदमत यह असली क्वालिटी ये वन बाकी रंडम क्वालिटी बेशुमार तथ मसल कहें यह जबरदस्त काम फास्ट मान बनी अकिस पोश सजन पेतिस पे पोश कर कम अज कम 4-5 पोश कर अकिस सजन पेतिस पे मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ, गुलाम रसूल खान साहब ने कश्मीर में ऑलमोस्ट 200 से 250 नौजवानों को इस काम की वजह से रोज़गार भी दिया है और हज़ारों नौजवानों को तरबियत भी दे रहे हैं। जनाब, आप अलग अलग जगहों में जाकर बच्चों को क्राफ्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और काम भी दे रहे हैं, तो वो जाने की कोशिश करेंगे आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी वो सिलसिला चला, फिर मैंने उसके पहले मैं आपको बताऊंगा ना, अब जब मुझे ये सारे इनाम अल्लाह ताला ने दिलवा दिया, लेकिन मैं चाह रहा अब इसका मेरे पर हक बनता है, क्योंकि इस वादी का भी हक बनता है, कश्मीर का हक बनता है। तो गवर्नमेंट ने मुझे इतना सराहा, लेकिन इसका हक अदा करना चाहिए। तो हालात ने यहाँ पर वो कारखानादारी ख़त्म कर दिया, क्योंकि कोई गैदरिंग नहीं करते हैं। हालात ऐसे थे, गैदरिंग में कोई बैठते नहीं थे, अब सारे अपने अपने घरों में बैठकर काम कर रहे हैं। पुरतनाव हालात की वजह से जो यहाँ पे हालात हाँ, लोग डरते थे। हाँ, हालात ही थे ऐसे, कोई नहीं आते थे। तो उसके बाद ये रहा कि अब लड़के अपने अपने मिजाज से घर में बैठते हैं, लेकिन ये जो आर्ट है, आर्ट गैदरिंग से बनता है, एक दूसरे के देखने से, एक दूसरे के नज़र में बनता है। ये इनफरादी नहीं बनता है, इनफरादी मजदूरी चलती है, एक काम चलता है, लेकिन जो क्वालिटी को चेकअप करना, क्वालिटी बनाना, इसका बेस प्रोडक्ट पैदा करना, वो सुबह जो काम में आएगा कारखाने में, फैक्ट्री में, शाम निकलेगा तो उसका काम आ गया, वो ज़ाया नहीं हो गया। एक दिन उसने पाया अपने कब्रे के ऊपर, काम हो गया। लेकिन जो घर में बैठता है, उसके घर के बहुत सारे मसाइल है, वो उधर देखता है, इधर देखता है, और फिर दिमाग सोचता है आज के कंप्यूटर के ज़माने में, चलो मैं वहाँ लेबर का काम करूँ, दिन भर मजदूरी करता है, बस फारिग बे होता है वैसे बात। तो नतीजा उसके यही रह गया, काम लेट हो गया। अब इस वक्त ना तो क्वालिटी है,
न क्वान्टिटी है। हमारी गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी ने पीछे हमारे से एक क्या बोलते हैं उसको जूम मीटिंग किया था, उनकी भी ये इच्छा है कि हिंदुस्तान से हमारा बड़ा एक्सपोर्ट का रास्ता खुल जाए, उसमें हमारा कश्मीर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जाए। लेकिन जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट जाएंगे सब एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ है? हमारा जो प्रोडक्ट करना है एक्सपोर्ट का मतलब वो कंटेनर बनाना, तो वो किस जगह बनाएंगे? क्योंकि बाहर का एक मिजाज है, वहाँ जो भी चीज़ एक बनेगा उसके पीछे 1000 बने 2000 बने, लेकिन सिमिलर बने। एक जगह टीला एक जगह सीधा ऐसा नहीं चलता है, और वो सारा फैक्ट्री से बनता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज है, वहाँ पर वो सारे फैक्ट्री के अंदर बनता है, लेकिन जो घरों में काम इनफरादी होती है उसकी क्वालिटी नहीं बनती, क्वान्टिटी भी नहीं बनती है। 2021 में आपको मतलब का एक बहुत बड़ा बावकार एजाज हासिल हुआ। बिल्कुल बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो वो तजुर्बा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कैसे लम्हात थे जी, और जब वो एजाज आपको हासिल हुआ उसके बाद जिंदगी में क्या तब्दीली आई? वो तो मैं सामने आपको वही बता रहा है, जिंदगी में यही तब्दीली आ गई कि मैं चाह रहा हूँ इसका आपको डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आपको जब वो एजाज हासिल हुआ, हाँ, तो हमने देखा कश्मीर में जो यंग नए आर्टिस्ट क्राफ्ट के साथ जुड़ रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, और आपकी वजह से इस काम में आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आते, नए नए नौजवान 15 साल 20 साल के लड़के रोज फेसबुक में अपना नाम डालते हैं, बस हमारा फ्रेंडशिप करो, हमारा फ्रेंडशिप कर दो। अब मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ फ्रेंडशिप करने का मतलब क्या है, अगर मतलब है कुछ तो उसको आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। फिलहाल आप नमाज की पाबंदी करो। अच्छा, 2021 में जब एजाज मिला, किन्होंने आपको वो अवार्ड दिया था, और अवार्ड सेरेमनी के बाद किन किन से आप मिले? क्या प्राइम मिनिस्टर से आप मिले? क्या बातचीत हुई? तो पहले ये बता दीजिए, अवार्ड किन्होंने आपको दिया था? अवार्ड तो पहला मुझे दिया था, प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट उस वक्त थे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। और दूसरे बार जो वो नेशनल अवार्ड पर थे। ओके। और दूसरा शिल्प गुरु अवार्ड दिया था, वो क्या था उनका नाम, जो बंगाल के थे शायद, मुखर्जी। अच्छा, हाँ, प्रेसिडेंट मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, राइट, बिल्कुल, उन्होंने दिया था। अब पद्मश्री अवार्ड आपको? पद्मश्री अवार्ड दिया मुझे वो जो उनका नाम मुझे कैसे याद आएगा, रामनाथ कुंड, राइट। तो उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर से मिले? उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसके बाद भी मिलता रहे। क्या बात हुई जब प्राइम उस वक्त भी मेरे जबान पर वही दास्तान है कि इस क्राफ्ट को कैसे डेवलप करें, कश्मीर का तवज्जो। वहाँ भी वो पेन, इस क्राफ्ट की पेन। हाँ, ये तो नेचुरल है, मेरे दिल में वही है। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए, ये तो मैंने कभी आरज़ू किया नहीं। अच्छा। जो दिया है अल्लाह ने दिया बहुत कुछ, लेकिन जो मुराद है इस पर मेरा नाम बना, अवार्डी बना, लेकिन उसका मेरे से कुछ हेल्प हो जाए, वो चीज़ बाकी रहने के लिए मैंने अपने मोदी जी से कहा था, ऐसा चीज़ है, कहा देखो खान साहब, आपके लिए हम बहुत कोशिश करें, कश्मीर के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। ये 2024 में 21 में ही बताया था, तो उनके साथ मीटिंग हो गया, कहा नहीं अब आपको हम जल्दी काम कराना है, हमें दुबई से अरबों से यहाँ कश्मीर के लिए क्राफ्ट डेवलपमेंट करना है, यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। मेरी राय है आपको भी भेजेंगे, आप भी हम मनोज सिन्हा के साथ दुबई चले जाएंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। ओके। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं इतना समझा नहीं उसने क्या कहा जोश था। तो फिर मैं 5-10 दिन ही हो गया, मुझे होम मिनिस्टर से मैसेज, नहीं, हैंडीक्राफ्ट से मैसेज आ गया, आपको कागज भेजना है, आपको मनोज सिन्हा से दुबई जाना है। ओके। हो गया, वहाँ पर हम रहे 15 दिन, कुछ एग्जीबिशन भी था वगैरह वगैरह, और अपना इंट्रोड्यूस भी अरबों को करना था, कर दिया, उनके साथ भी बातें किया, कश्मीर की हालत, उनके लिए क्या कैसे क्या करेंगे। फिर वो यहाँ आ भी गए, लेकिन आगे उसका कोई वजूद अब तक नहीं हुआ। अच्छा, अब कई सालों से आप इस काम के साथ मुंसलिक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कश्मीर के पुरतनाव हालात हुआ करते थे, जो कश्मीर के खराब हालात हुआ करते थे, उसकी वजह से क्या असर पड़ा आपके काम पे? ये मुख्तसर मुझे बताओ। नहीं, वो बेसिकली जो हमारी गैदरिंग थी ना, जिस घर में जब आप एक घर में मिलते थे 10-15 बंदे काम करते थे। हाँ, ये सिलसिला वो टूट गया ऑटोमेटिक। लोग डरते थे। हाँ, नहीं डरना, वो हालात ही ऐसे थे, क्योंकि क्रैक डाउन हो जाता था। क्रैक डाउन में मेरे पास कारीगर तकरीबन 30-40 कारीगर मुझे दिल्ली भी साथ हुआ करते थे। वहाँ पर हमारा वो ओखला बटला हाउस में कुछ ग्रेनेड वेनेड हो गया था, तो हमारे 2-3 लड़के बाहर थे, तो उनको पकड़ लिया गया। अब शोर उठ गया कश्मीर में, पता चल गया भाई हमारे लड़के अरेस्ट हो गया, कारीगर। हाँ, कारीगर, ये मामला हो गया। तो खैर हमारा वहाँ तारुफ था, तो हमने वहाँ उनको SHO साहब को फ़ोन करवाया दिया, सर ये तो हमारे एक आर्टिजन है इस तरह,
तो उन्होंने वापस छुड़वा दिया। हाँ, कहा नहीं, आपकी निगरानी में कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, उनको पता होता है ना कौन किस लाइन का आदमी है। मैंने कहा और लड़के हैं, तकरीबन 30 लड़के और हैं, या तो सबको ले जाओ नहीं तो इसको छोड़ दो। फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया उसकी वजह से, ओके। बहुत खराबी हो गई। तो अब कश्मीर में आज हाँ, क्राफ्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है? बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगरचे हाँ, आपको देख के नए नौजवान इस काम में आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, आपका एक खास तजुर्बा है। बिल्कुल। आप हमें ये बता दीजिए इस काम को कैसे डेवलप किया जाए? एक ही सूरत है, एक ही सूरत इस वक्त है जब तक क्राफ्ट सेंटर नहीं बनेगा। हमने सारे हरबे किए, मैंने कहा ना, मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप नोट करेंगे। मैंने अपने ज़ात से 10-10, 20-20 लड़कियां और कहीं लड़के लोग पकड़ के उनके बीच में मैंने उनको सिखा दिया। वो काम करते हैं लेकिन वो अनप्रोफेशनल काम, यहाँ जो बड़े शाले बनते हैं वो अनप्रोफेशनल। मेरे सामने वो कोई अप्रूव नहीं है, मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो लगन आप में थी, आप सिखाना हाँ, मैं चाहता है आप उनको रोजगार देना हाँ, चाहते बस मैं चाहता है एक रोजगार तो मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि असल तो काम है, हाँ। रोजगार उसमें मुफ्त में मिलेगा। जैसे अल्लाह ने हमें रखा है, जैसे खाना पीना के लिए जिंदगी मेहनत करनी है, हाँ। लेकिन पेशाब पाखाना मुफ्त, वो तो खुद निकलता है, उसको हाँ। निकालने के और अपने टाइम पर। हाँ। इसी तरह हमारी रोजगार मुफ्त में अल्लाह ने रखा है, लेकिन हमें अपने काम को लगन के साथ करना है। और लोग यहाँ कहते हैं हमें मजदूरी नहीं पड़ते, वो उसकी वजह से दलाली यहाँ ज्यादा है, दलाल के जरिए हमें काम देना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरा वो जो दलाल था जिसके पास अभी भी 32 लाख रुपए है, तो उसको 32 साल मेरे साथ काम किया, 32 साल के बाद आपको धोखा दिया। अब मेरी कारखाने में होता काम तो कोई जाता नहीं, क्योंकि वही काम छोड़ता, शाम को निकलते वापस आ जाते, सुबह बैठते। तो ये हमारी, क्योंकि माहौल अब एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत खराब है, उसको बचाने के लिए, क्राफ्ट को बचाने के लिए और क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए पूरा दुनिया कश्मीर क्राफ्ट को चाहते हैं, घर घर चाहते हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट होना ही चाहिए। तो प्रोडक्ट यहाँ किसी जगह है नहीं। अब जो है वो वहाँ पसंद नहीं। करोड़ों रुपए का माल, अरबों रुपए का माल दुकानों पर पड़े हैं पूरे वर्ल्ड में। अब अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में देखो, लेकिन तकरीबन 99% मशीन मेड, और अगर कुछ हैंडमेड है तो वो क्वालिटी नहीं, वो क्वांटिटी की शक्ल में है। उसकी वजह से इसमें नफरत होने लगी कस्टमरों में। जो हमारे हाई लेवल कस्टमर है होते हैं ना, पश्मीने के नाम पर हाई लेवल पहनेगा वही, जो 15-20 हज़ार रुपए का शाल पहनेंगे तो उसका स्टैंडर्ड वही होगा, स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब उसकी क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी करके वो लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का एक शाल बनता है। उसके लिए हाई पाथ का इंसान होना चाहिए, अंबानी जैसा। तो इसके लिए यहाँ क्वालिटी बनाना है, क्वालिटी बनाने के लिए शॉर्ट रास्ता कारखाना है। इसमें हैंडीक्राफ्ट कुछ नहीं कर सकते, कुछ डायरेक्टर नहीं कर सकते। कितना भी वो डायरेक्टर करेंगे, वो क्या करेंगे, खुद को तो बैठना नहीं, तो वो तो करना है। जब वो कारखाने में बैठे, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 30-40 अवार्डी है, बल्कि अब बहुत ज़्यादा और हो गए। वो उनको मास्टर बना देंगे, उनकी भी रोजगारी बन गई, और सुबह शाम उनको सिखाएंगे, समझाएंगे। जिन पर हमें अवार्ड मिल गया वो क्वालिटी बनवाएंगे। और उन क्वालिटियों को पूरा दुनिया चाहते हैं। ये अवार्डी का शाल है, इसको ले लो, या अवार्डी का कारपेट है, इसको ले लो, अवार्डी का वुडकार्विंग, कपरमाशी, इसको एकदम फौरी तो लेते हैं। लेकिन वो अवार्डी जो चीज़ होता है उसको कीमत भी मिलता है, कारीगर खुश भी होता है, लेकिन वो उसके बाद उसकी क्वालिटी मांगता है 10 पीस 20 पीस, वो तो होता ही नहीं, क्योंकि अवार्डी का हाथ अलग होता है। अब जो अवार्डी लड़कों को सिखाएंगे, जैसे यहाँ हमारे डॉक्टर साहब उनका क्लास होते हैं, तो वहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर पैदा होते हैं। अब दूसरा कुछ नहीं होता, क्वालिटी निकलते हैं। अब जैसा डॉक्टर होगा वैसे क्वालिटी निकलेगा। अगर आर्टिफिशियल डॉक्टर होगा तो इस वक्त डॉक्टर भी ऐसे हैं, बेचारे फकत दवा बेचते हैं और एक्सरे करवाते हैं, है ना। वो वजह है डॉक्टर सही नहीं है, लेकिन वो सीखा नहीं। सेंटर पहले होना चाहिए, जिस चीज़ का सेंटर बना वो कामयाब है। इस तरह सारे हिंदुस्तान का सेंटर दिल्ली है, और दिल्ली में जैसे ऑर्डर निकलेगा वैसे पूरे स्टेट में होगा। अगर दिल्ली में गड़बड़ निकला तो पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़। अगर दिल्ली में ऑनेस्टी होगा, पूरे हिंदुस्तान में ऑनेस्टी। इसलिए कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा असल हुकूमत नहीं, असल हिकमत है। जब तक हिकमत वजूद में नहीं आएगा तो तब तक कामयाबी और पूरा दुनिया रोशन नहीं होगा। जैसे आज हम फख्र करते हैं अमेरिका है, फ्रांस है, पेरिस है, वगैरह है, दुबई है, लेकिन वो बुनियादी अपने ज़ात को पहले क्वालिटी बनाया, यानी उन्होंने हुकूमत अपने आप को नहीं समझा, उन्हें हिकमत चलाया। हिकमत का मतलब इंसान की हर ज़रूरत उनको आसानी से मिल जाए, और फिर उसके अंदर इंसान को कैद किया ताकि वो बिगड़ेगा नहीं। ये मंशा अल्लाह ताला की भी है। हम इंसान को सारी चीज़ें खुद दे दिया, आँख, नाक, हाथ, पाँव, और फिर हमको कहा तुम अब कलिमे के ताबिया हो जाओ। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अब हमें
ला इलाहा इल्लल्लाह के कैद खाने में कैद है। जहाँ भी हम इसके बाहर कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर हम कैदी नहीं माने जाएंगे, फिर हम कलमे वाले नहीं माने जाएंगे। जिस तरह आज मुसलमान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का नाम है, सर से पाँव तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। हाँ। खाना भी उसी के तरीके, सोना भी उसी तरीके से, उठना बैठना भी, और लेन देन भी। जब तक हमें कोई मिल जाता है ना, वो फिर ये बकरा किसी गरीब की है, किसी बेचारी औरत की है जिसका कोई नहीं, तो वो उसको काट के खाता है। हाँ। क्योंकि उसको मौका मिला, पेटू राम है। तो इस तरह हमारे असल ज़िंदगी जो है वो मानने में है। तो मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा, मौजूदा गवर्नमेंट से भी बातें किया, भी बहुत किया बातें अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही गुजारिश किया कि कश्मीर में कश्मीर सेंट क्राफ्ट बनाया जाए और उनकी निगरानी में मास्टर क्राफ्ट मैनों को रख दिया जाए, उनके अंदर करे। अगर गवर्नमेंट स्टाइल से हम बने, वो बना था पहले भी, जैसे गवर्नमेंट एम्पोरियम है ना, वो गवर्नमेंट एम्पोरियम नहीं था, वो सिविल एक NGO का था। तो तब तक वो शानदार चलता था। एम्पोरियम में ऐसी चीज़ें होते थे, दुनिया चराता था। फिर जिस वक्त उसको गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड ले लिया, ऑटोमेटिकली वो आर्टिजन भी कहीं नहीं है, और आज उस एम्पोरियम में भी वो सब चीज़ें नहीं है जिस चीज़ को होना चाहिए। और उसी सेम से हम आज मांगते हैं, अगर एक राष्ट्र आर्टिजनों के अंडर रह जाएगा, इनकी NGO चलाया जाए, जैसे बना रखा है क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी मैंने बना रखी है, उसके एतबार से इसको बनाया जाएगा। कुछ और ही बात है। ओके, समझे नहीं क्या? आवाज़ द वॉइस के साथ बातचीत के लिए शुक्रिया। जी हजरत, जी हजरत।